حکومت تو یہ کر رہی ہے، میں اس کا چیز کو مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ حکومت کا جو رویہ ہے وہ اداروں کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ دو خاندانوں کو پچھلے 50 سال سے جو ہے ملک ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم سے نیچے تو کوئی ہے نہیں، ہر ایک نے وزیر اعظم ہی بننا ہے۔ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف شکنجہ سخت ہو گیا ہے، کیسز اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 17 سال قید اور 3 کروڑ 28 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے مقدموں پر سینیٹر فیصل وابڈا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا ہے اور قیامت باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں، اللہ رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری کسی نے سنی نہیں، اور سنی بھی تو انسنی کر دی، اور ان سب نے اس کو وہاں پہنچا دیا، یعنی وہ عمران خان کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ یہ تو فیصل وابڈا صاحب بڑی سخت بات کہہ گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے خیر سٹریٹ موومنٹ کی تیاری جناب شروع کر دی، اور اسد کیسر سمیت متعدد رہنماؤں نے مزاحمت کا ایسے میں اعلان کیا اور واضح کیا کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں بچا ہے۔ اور تاہم بیرسٹر گوہر نے مفاہمت یا مزاحمت کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی کو دیتے ہوئے یقین دہانی کروائی ہے کہ تحریک انصاف آپ کے پیچھے کھڑی ہے، مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں جی ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم معاف کرتے ہیں، ہم جمہوری ڈائیلاگز کے لیے تیار ہیں، آئیں مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ ساتھ ہی محمود خان اچکزئی نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ میدان میں آئے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ پی ٹی آئی پہلے فوج پر تنقید کرنے پر معافی مانگے، ملکی سلامتی کے اداروں پر تنقید کرنے والوں سے خود کو لا تعلق کرے، ان شرائط پر عمل کرتی ہے تو پھر بات ہوگی۔ اسی تمام تر صورتحال پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان محمد علی صاحب نے۔ گڈ مارننگ محمد علی دورانی صاحب۔ سر، تحریک انصاف کے گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شکنجہ جو ہے وہ کسا جا رہا ہے، بہت زیادہ سختی ہو چکی ہوئی ہے، اور ایسے میں فیصل وابڈا یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا آپ انتظار کریں، گواہی پہ ان کا بہت زیادہ سٹریس ہے، تو اس گواہی کے بعد آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا اور بانی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت میں تو 9 مئی کے واقعات اور سیاست کو آپس میں کنیکٹ نہیں کر پاتا اپنی سوچ کے اندر۔ 9 مئی واقعات ہیں وہ تو ایک کرمنل ایکٹ ہے، ایک جرم ہے جس نے بھی کیا ہے، اور جس کے خلاف اس کا ایویڈنس ہو اس کو اس کی سزا ملنی پڑے گی، ملنی چاہیے۔ اور یہ ایک قوم کا ایک مطلب ایک قومی ایشو ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، امریکہ میں دیکھا ہے ہم نے، برطانیہ، دنیا کے تمام ممالک میں، کہ جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن اس سے سیاست پہ کوئی اثر پڑنا، یہ اس کی کوئی کنیکشن مجھے میری سمجھ میں یا میری تاریخ کے پرسپیکٹیو میں میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو اگر جرم ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور جرم کی سزا کسی رویے یا کسی اقدام سے ختم نہیں ہوتی، جرم کی سزا سے ختم ہوتی ہے، تو یا پھر وہ معصومیت سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کو سیاست میں اگر ملا دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، حکومت تو یہ کر رہی ہے، لیکن میں اس کا چیز کو مطلب سمجھنے سے قاصر ہوں۔ باقی جو یہ ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت، کل بھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، ابھی جو سزاؤں کا معاملہ ہے، اب سزائیں تو نیو نارمل بن گئی ہے، کہ مطلب بہت سی سزائیں ہو رہی ہیں اور مزید ہوتی جاتی ہیں، اور ایک سو اور 100، وہ پنجابی کا ایک محاورہ دیتے 100 تھے 7100، 100 وہاں 101، تو وہ تو اب میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی اس وقت
हुक्मरान अफराद हैं, सब जेलों में भी रहे हुए हैं और सब ने सजाएं भी ली हुई हैं और आज माशाल्लाह हुक्मरान भी हैं। ये तो एक सिलसिला जो है हमारी सियासत का एक मतलब मनफी बाब है जो चलता रहता है कि यहाँ पे जुर्म और ज्यादती या जो गलत इक़दाम है वो सजा का बात नहीं बनता। इक़्तिदार में होना और ना होना सजा के होने और ना होने का सही। करता है। तो इस वक्त जो है मतलब मुख्तलिफ जैसे अदलिया को जो है वो इंतजामिया के तहत कर लिया गया, तो अब हुकूमत जो चाहे वो कर रही है। हुकूमतें ऐसे ही करती नहीं है माजी में भी और अभी भी कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका पब्लिक की ओपिनियन के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पब्लिक डरा नहीं करती। पब्लिक ज़हन साजी अपनी कर ले अगर तो फिर वहीं खड़ी रहा करती। और हमने किसी को जिसे कहते हैं ना हुकूमती जबर से या हुकूमती सजाओं से हमने किसी पॉलिटिकल एंटिटी को ख़त्म होते हुए नहीं देखा और हुकूमत में होने से किसी एंटिटी को बहुत पॉपुलर होते नहीं देखा। पॉपुलर तो आप हुकूमत को उसके इक़दामात बनाते हैं आवाम के लिए, उसकी जो पॉजिटिव पॉलिसीज़ होती हैं, मईशत की पॉलिसीज़ होती हैं, इंसाफ की, गवर्नेंस की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बनाती हैं। और इसी तरीके से जब ये नहीं होती तो हुकूमतें पॉपुलर नहीं होती। तो आज की दिन में तो दुरानी साहब इसी पॉपुलैरिटी के बिना पर अब तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी तैयारी असद कैसर जो है वो मुतादिद रहनुमा जो है वो इस चीज़ की मज़ाहमत का ऐलान भी कर रहे हैं। तो क्या एहतजाज से तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएगी? देखिए, एहतजाज जो है अभी तक पीटीआई का एक ही इशू है कि उनका जो सियासत है या जो उनका सियासी जद्दोजहद का ट्रेनिंग है या जद्दोजहद का परसेप्शंस जो हैं वो उनके इतने क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ उनके मुकाबले में हुकूमत है जो बहुत क्लियर है इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने किसी किस्म की सियासी रिकन्सिलिएशन नहीं करनी। हुकूमत किसी भी सूरत में अपोजिशन के साथ सियासी रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहती और उन्होंने एक एंकर डाल दिया है बीच में, एक वो लगा दिया है जिसे कहते हैं ना कि बेंचमार्क लगा दिया है, एक निशान लगा दिया है कि जनाब हमने जो है ये नहीं करनी रिकन्सिलिएशन और इसके लिए इस्तेमाल हमने मुल्की इदारों का करना है, उनकी इज्जत को करना है, उनके मामलात को करना है। तो ये एक ऐसा है जिसमें कि दोहरा नुकसान हमारा हो रहा है। हमारा मुल्क का एक तो जो सियासी टकराव है वो मुल्क के अंदर एक शिद्दत पैदा कर रहा है और एट द सेम टाइम जो रवैये हैं, हुकूमत का जो रवैया है वो इदारों को भी मुतनाज़िया बना रहे। अवाम और इदारों के दरमियान फासला पैदा करना, ऑपोजिशन और बिल्कुल दुरानी साहब आप सही निशानदही कर रहे हैं कि अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए फिर इदारों का भी ख्याल नहीं रखा जाता, उन्हें भी इस्तेमाल किया जाता है। मोहम्मद अली दुरानी साहब अगर हम देखें तो जो कोशिश हो रही है कि कोई मामलात को बेहतर किया जाए, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो कोई मुफाहमत का रास्ता निकालना चाह रही है, डायलॉग के हवाले से कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जनाब तहरीके इंसाफ जो है वो इन लोगों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है। महमूद खान अचकज़ई फैसला करें कि मुज़ाहमत करनी है या मुफाहमत, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, तो क्या आपको लगता है कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाहमत के लिए कोई पीटीआई के साथ इस तरह से चलेंगे और जैसे हुकूमत के मुताबिक है कि क्या वो वाकई कंधा दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को? लेकिन दिस इज नन ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस कि जी महमूद खान साहब का कंधा यूज हो रहा है या ए का हो रहा है या बी का हो रहा है। मतलब ये तो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ ताउन भी अगर वो ताउन कर ही रहे हैं तो ये तो एक मुस्बत चीज़ है। और अगर वो ये समझते हैं कि जी पीटीआई के रवैये में शिद्दत है तो ये तो पुराने उनके एलाए रह चुके हुए हैं, इनके बारे में तो वो जानते भी हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके बलूचिस्तान में महमूद खान साहब को और उनके भाई को गवर्नर बनाया था, उनका एक पुराना ताल्लुक भी है। तो लिहाजा इस लिहाज से हुकूमत को तो इसमें कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि हुकूमत किसी तरह से भी किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाने का इंटेंट नहीं रखती। इस वजह से वो कहते हैं आटा गूंथती हिलती क्यों, तो मतलब ये है कि ये वाली तुम्हारा तो इससे कोई मतलब नहीं कि किसके
कौन कर रहा है भाई, वो तो चलो मफावत की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात। पता चले आपने पीटीआई पे इल्जाम लगा दिया कि जी वो इदारा ये करते हैं, तो इनका तो कोई शिकायत नहीं है, तो चलो इनसे बात की। तो बातचीत करने में हुकूमत का निनामे का उनको घाटा नजर आता। उन्हें पता है कि अगर वो बातचीत शुरू करेंगे तो फिर उनका जो अख्तियार है वही खत्म हो जाएगा या वो कमजोर हो जाएगा या उसके बारे में जो जितनी। लेकिन दुरानी साहब अगर इम्कानात भी देखें और जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई ने सियासी क़यादत खुसूसन नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और दीगर को मुखातिब करते हुए कहा है कि आए मिलकर हम एक दूसरे को मुआफ़ करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। तो क्या आइंदा दिनों में सीनियर सियासतदान नवाज शरीफ या मौलाना सियासी मफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करते हुए नजर आ सकते हैं? जी मेरी तो नजर में ये बात मतलब पहले दिन से ही मैं तो इसी चीज का कायल हूँ कि इस वक्त जो क़यादत है उसको मफाहमत का रोल अदा करना चाहिए। मज़ाहमत के लिए उनके पास एक जगह है जहां उन्हें करनी चाहिए, वो पब्लिक की मिजरी है, पब्लिक के लिए इश्यूज हैं, वो जो महंगाई है, जो बैड गवर्नेंस है, वो तमाम इश्यूज जिनकी वजह से अवाम मुश्किल में है। देखिए इसको अब सोलर आया तो सोलर खत्म, बिजली की कीमतें मजीद बढ़ गई, आपका मतलब आटे से लेके पूरी की पूरी जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खत्म होके रह गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ने नहीं, सिर्फ मुल्क में एक कारोबार हो रहा है जो कि कर्जों का कारोबार है कि आप कर्जे ले रहे हैं, बड़े अपने हमारे दोस्त मुल्क तक हमारे कर्जों को रोल ओवर करने से रिलक्टेंट हो रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे जो मुआशी इश्यूज है जिसके ऊपर के एक दबीज पर्दा डाल दिया जाता है प्रोपेगेंडे का और इस टकराव का कि जी आपस में हम ये मतलब सियासी जो गिमिक्री है, मतलब सियासी पुतली तमाशा। दुरानी साहब सर कता कलामी की माजरत, ये जो आपने वर्ड यूज किया सियासी मिमिक्री से याद आया, आप तो मतलब सियासत की जितनी राहदारियां उनसे बाखूबी वाकिफ हैं आप, कोने खदरों से भी। सर ये बताइएगा कि ये जो फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं, महमूद मौलवी साहब एक्टिव हुए हैं और भी शख्सियात हैं जो जा रहे हैं कोट लखपत में मुलाकातें कर रहे हैं, वाकई सारे स्टेक होल्डर्स की मर्जी और मंशा इसमें शामिल है? ये वाकई कोई बातचीत हो रही है संजीदा या फिर अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है? देखिए इनकी जो महमूद मौलवी साहब की या फवाद चौधरी साहब की जो इक़दाम है, देखिए वो कर क्या रहे हैं, वो एक रास्ता बता रहे हैं कि जी इसके इस तरीके से जो है आपस में रिकंसिलिएशन। कुछ लोग कहते हैं जी खान साहब का तो बड़ी, ये मैं एक स्ट्रेट बता दूं कि रिकंसिलिएशन उस वक्त होगी जब बातचीत और मामलात जो हैं वो खान साहब के साथ डिस्कस होंगे, जब वो खुद डायलॉग का हिस्सा बनेंगे, उसी वक्त जो मुल्क के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन हर आदमी जो है, क्या पहले दिन आप मंजिल पे पहुंच जाया करते हैं? सियासी अमल तो एक प्रोसेस होता है। उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया है कि जी नहीं अच्छा, जो इनकी सीनियर लीडरशिप जो कोट लखपत जेल में गिरफ्तार है, वो जितने भी लोग हैं, महमूद रशीद साहब हो, जाल चौधरी साहब हो, चीमा साहब हो, अब मखदूम साहब हो, मतलब जितने भी लोग हैं वो अगर वो उनके जरिए बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो कोई बुरी बात तो नहीं कर रहे, अच्छी बात कर रहे हैं कि उनकी भी एक राय है वो। लेकिन इसमें ये है कि दुरानी साहब अच्छी बात करें, लास्टली एक और दावा सामने आया है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये दावा करें, तो क्या इम्कानात लगते हैं आपको? देखिए दावा करने में क्या रजा, पाकिस्तान में तो मतलब हर बच्चा जो पैदा होता है वो वज़ीर आज़म ही बनना चाहता है, और फिर हमारे यहाँ तो जो मरूसियत का मामला है कि मतलब हमने दो खानदानों को पिछले 50 साल से जो है मुल्क ठेके पे दिया हुआ है, 70% कर्जे भी उन्होंने लिए, आवाम की मिजरी के भी वही जिम्मेदार हैं और मासूम भी वही हैं। तो चले अब मतलब KPK में बैठ के वो मतलब वज़ीर आज़म से नीचे तो कोई है नहीं, ठीक है जी, हर एक ने वज़ीर आज़म ही बनना है। बच्चा जो पैदा होता है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए पैदा होता है। तो अब ये तो हमारी एक किस्मत है, ये नहीं कहीं पता चलता कि इस वक्त कराची में बच्चे की पर्चियां जो आ रही हैं वो कौन, ये नहीं पता लगता कि सिंध की मईशत और बल्कि पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ निजाम को जा रहे हैं, उसका क्या बने। ऐसे ही है, लेकिन हम निजाम पर बात नहीं करते हैं, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया मुरादी साहब आपके वक्त का।